कि हर बेटी के लिए उसका पिता एक हीरो के जैसे होता है, और वो पहला इंसान होता है जो वो जानती है, पहचानती है और प्रोटेक्टेड महसूस करती है और करना चाहती है। तो जब तक हम अपने ऑडियंस को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, जब तक ऑडियंस में अवेयरनेस करेंगे, अभी जैसे आप कर रही हैं, आप योर प्लेटफॉर्म इज डूइंग a big service to this kind of cinema by bringing us in front of an audience and telling them कि देखिए इस तरह की फिल्में बन रही हैं, इस तरह की फिल्में देखनी चाहिए। सेंसिटाइज होने की जरूरत है हमारे कोर्ट्स को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे सिस्टम को, आई वुड से। The problem with our society, just like you said, it's talked about in some reality show and then conveniently forgotten and brushed under the carpet. Welcome to IWMBuzz. Big congratulations for this new movie. Trailer look amazing. It's very touching to everyone. Immense love is getting for this trailer. What do you want to say for the trailer? The love you're getting for the trailer. After you, Nanji. Why don't you take it up? We have this little tete-a-tete between the two of us as to who's going to answer first. So I'm going to let the lady do the honors. Okay. I'm extremely happy and overwhelmed by the response, and I'm really glad that people are liking it and they have received it well, because people have not been very receptive as far as these issues are concerned. So if the film is being made on such a topic and people are liking it, it just makes me feel happy. And sir? Yeah, I agree with Geetika, because you see, ultimately trailers are just indicators of what's going to come, and you really don't know what's going to happen in the film from the trailer, but lots is going to happen in the film itself. But the concept of the predator in the house is a very frightening thought, and the fact that people have acknowledged the fact that something like this has been attempted, and something like this was it's I mean it should have been attempted far much earlier. I mean, it's too late in the coming, in fact. Yes. So the very fact that this kind of film is being made and sort of distributed for audiences itself is exciting for the audience. I think that's what has made people sort of suddenly open their ears and eyes and look at this with a different eye. Sir, as you said, we are very too late to talk about this on this topic. We have seen small glimpse of this topic on a Satyamev Jayate. वहां से लोगों को जागरूकता तो आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से शांति हो गई थी. No one was talking about this topic again. People were scared to talk about on this topic in front of camera or in front of anyone. Do you believe that we need to talk more on in such topics? See, there are a lot of topics that are taboo in society, right from the rape that happens in front of everyone's eyes to this kind of molestation by a parent inside the house within closed walls and not being revealed to the world at large. But the problem with our society, just like you said, it's talked about in some reality show and then conveniently forgotten and brushed under the carpet. So that is what Yes Papa is trying to sort of unravel and get before an audience the repercussions of such an act on the victim, on the survivor, what she grows up into. She grows up with nursing this wound in her body and mind, and how does it affect her future life? And suddenly, in a turn of events which are the most unexpected, something happens and she has to take a decision that's probably the most painful, agonizing and difficult decision for her to make. And it's a very controversial decision for her to make, and that's what brings her to the crossroads between her and her father. So I think it's a dramatic volcano that needed to be explored, and Saif Hassan has gotten into the actual roots of the evil, and but not
sort of blown it out of proportion or sensationalized it, but done it in a very aesthetic way that it can hit you like a sledgehammer and yet not repel you. Yeah. Very Yes. sensitive. Yes. Geetika, ma'am, I want to know from your side, whenever we say father-daughter duo, people love it. Like, हर कोई का रिश्ता अपने डैड के साथ काफी खास होता है. Every daughter wants नो अपने फादर की तरह ही उनके लाइफ में एक हीरो हो हमेशा. But to show something like this topic is very sensitive. To play such character, was it tough from your side also, and to show something different what audience want? I completely agree with you because, like you said, कि हर बेटी के लिए उसका पिता एक हीरो के जैसे होता है और वो पहला इंसान होता है, मेल मर्द जो Yeah. वो जानती है, पहचानती है और प्रोटेक्टेड महसूस करती है और करना चाहती है. सो यस, ये सोच पाना ही बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी. एंड लाइक अनंत जी सेड, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट. तो इसके बारे में फिल्म बनाना और उसको इतना सेंसिटिवली हैंडल करना वाज आल्सो अ चैलेंज, which Saif has done it extremely well. When you watch the film, you'll come to know. And masses avoid these issues, which leads to sufferings of many male children, female children, and they grow up with this troubled childhood. So definitely ऐसी चीजों को सोच पाना बहुत मुश्किल है. तो इस किरदार के अंदर घुसना ज्यादा मुश्किल था, उसकी साइकी को पहचानना, उसको क्रैक करना. तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत इजी रहा और एक्टर का जॉब है ये वो. मैं ये बोलूंगी कि एक ऐसी एक्सरसाइज थी जो मैंने पहले कभी नहीं की थी. मैंने और बहुत सारी चीजें करी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, पढ़ी हैं, बट ये एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ आप सुनते ही है ना. मतलब आप, फॉर्चुनेटली हम लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं घटी ना. हमारे रिमोटली भी मैं किसी को जानती हूँ जिनके साथ ये हुआ है. जबकि जब मैंने ये काम करना शुरू किया तब हमने बहुत लोगों को जाना जिनके साथ ये हुआ है, एंड इट वाज शॉकिंग फॉर मी. तो इनफैक्ट मैं जब शुरुआत में सबसे पहले एक जस्ट ऐसे स्मॉल प्रीव्यू और एक ट्रेलर सैफ ने शेयर कर दिया था फेसबुक पे, तो हमें बहुत कमेंट्स आए जिसमें आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि मेरे ही फ्रेंड लिस्ट में 2-3 लोगों ने जो कमेंट्स किए, दैट काइंड ऑफ जोल्टेड मी आउट, बिकॉज उन्होंने बोला कि बहुत ब्रेव हैं आप जो आप इस पे बात कर रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं. ये ऐसा होता है. बस उन्होंने वही कह के छोड़ दिया. एंड फॉर अस इट वाज इनफ टू नो दैट दे मस्ट हैव गॉन थ्रू समथिंग लाइक दिस. सो डिफिकल्ट उसकी साइकी को समझना था, बट रोल को प्रिपेयर करना और उसके बाद उसके किरदार को जीना, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को करना, वो लगभग वैसे ही रहा जैसे एक एक्टर के लिए होता है. एंड आई थॉरली एंजॉयड इट. बट यस, वो पेनफुल था जब जब वो सीन्स आते थे या जब जब वैसे कुछ तकलीफ के सीन्स आते थे, तो वो डिफिकल्ट था जो मैंने और सैफ ने बातचीत के थ्रू टैकल करने की कोशिश की. और अपने पर्सनल रेफरेंसेस जो हम सारी फीमेल्स के साथ कभी ना कभी लाइफ में हुआ होगा, नॉट नेसेसरीली इसी रिगार्ड में, बट और किसी मतलब और किसी वजह से हुआ होगा. जैसे हम ग्रोइंग अप तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, छेड़छाड़ होती है, हैरेसमेंट होती है या कुछ भी होती है. बस उस चीज को, ग्रेविटी को आप बढ़ा दें और बाकी अपने टेक्निक्स एंड प्रोसेस उसमें जोड़ के मैंने एक किरदार को पेश किया. कोर्ट रूम वाली एक सीन के बारे में बात किया जाए जहां आपको पूछा जाता है अभी आप अपने आप को प्रूफ कैसे करके बताओगे, देन यू से दैट कि मेरे आंखों से, मेरे सोल से. बट मोस्ट ऑफ हमने केसेस देखे हैं रियल लाइफ में भी कि जब वो प्रूफ के बारे में बात आती है तो वो केस वहां पे ही रुक जाती है और कंप्लीटली बदल जाता है, बिकॉज वो प्रूफ ही नहीं कर पाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या चल रहा है. यू फील कि प्रूफ करना कोर्ट में ये सेंसिटिव टॉपिक बिकम अ मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट? एब्सोल्युटली सेंसिटाइज होने की जरूरत है हमारे कोर्ट्स को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे सिस्टम को. आई वुड से कि किसी को भी हिचक ना हो ऐसी बातों के बारे में आगे आके बात करने के लिए. ये तो
मूल तौर पे करने की बेहद जरूरत है। आई रियली फील बिकॉज आधे 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 से ज्यादा किस्से वहीं जो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं वो इसी वजह से रह जाते हैं। The person who actually suffers the anguish until adulthood, उसके बारे में तो कोई सोचता नहीं है। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए बेसिक तौर पे एक सफाई होने की बहुत जरूरत है, आई वुड से। और कोर्ट में है, एक चलन है कि सबको बाहर भेज दिया जाता है और अकेले में जज विक्टिम से, सर्वाइवर से बात करते हैं उसकी लॉयर की मौजूदगी में, और बाकी लोग भी रहते हैं। बट क्या उतना भी काफी है? क्या जो लोग बात कर रहे हैं उनके मन में उस लड़के के प्रति क्या चल रहा है? क्या वो सिर्फ एक केस है उनके लिए रफा दफा करने के लिए, या फिर एक सेंसिटिवली हैंडल करने की भी क्षमता उनके अंदर है? ये एक सवाल आई थिंक सिस्टम में सबको अपने आप से पूछना चाहिए। और अगर वो ह्यूमन तौर पे, एम्पैथी के तौर पे जुड़ेंगे तो ये किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा इस बारे में आगे आके बात करने के लिए। अनंत सर, आपकी क्या है? डू यू फील कि वी नीड अ बेटर सर्कुलेशन फॉर दिस प्रोसेस? देखिए, कोर्ट में जज को छोड़ के बाकी सब जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आप जानबूझ के नीडल करते हैं सर्वाइवर को, विक्टिम को, और उसे उस पॉइंट तक ले जाते हैं कि आप अपना पॉइंट प्रूव कर सके और उनका केस वीक हो जाए। हम ह्यूमैनिटी की तरफ से देखते नहीं हैं। आई मीन, जिस एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो फादर की एक्ट उस लड़की के साथ, कोर्ट में भी आप क्या कर रहे हैं उसके साथ? आप वही कर रहे हैं इन वेरी डिफरेंट वे। मेंटली यू आर लाइक raping her. So unless more honest conscience for the society, इसलिए वो लड़की कहती है कि look into my soul, look into my eyes, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, और कोई honest एक तरह से रिएक्शन नहीं है उस लड़की के साथ। मतलब अगर आपने जरा सी भी, आपकी जमीर में थोड़ी सी भी ये हो, तो आप मेरी आंखों में देखिए, मेरे सोल में देखिए, और आपको पता लगेगा, आपको आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। सो ये जो suppression in society, right from the family to the highest level of society, which are the courts, ये पूरे जर्नी में वो लड़की जो सफर करती है, या ऐसे सर्वाइवर्स जो सफर करते हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते। हम यही सोचते हैं कि हम अब जस्टिस दिलाएंगे और कुछ चीजों को ठीक करेंगे, करेक्शन करेंगे सोसाइटी में। लेकिन मेरे ख्याल से हर बार एक कानून, या हर बार एक सिस्टम, या हर बार एक जो कायदा है वो डजंट वर्क। एम्बुलेंस को रेड सिग्नल तोड़ के जाने का ये है, परमिशन है, तो you have to know when you have to let that red signal go and let somebody pass. तो जब तक ये करेक्शंस नहीं होंगे सोसाइटी में, इस तरह के एक्ट्स होते रहेंगे। और I think, like Geetika said, it's a very, very brave film, because you need guts to make this. True. बहुत ही gutsy film है ये। आपने ये नहीं सोचा कि इस तरह की फिल्म के लिए ऑडियंस, यस पापा के लिए ऑडियंस होगी कि नहीं होगी, किस तरह के लोग आएंगे इसे देखने। आपने सिर्फ एक सिंगल माइंडेड ऑब्जेक्टिव के साथ इस फिल्म को बनाया कि मैं एक ऐसे इविल को एक्सपोज करूंगा, एक I will lay bare the facts of society in a way that people will come to know about it. The results at the box office can come later. So I think एक तरह से ऑडियंस की भी it's the duty of an audience to support this kind of cinema. बार-बार जो कहते रहते हैं कि अलग किस्म की फिल्में नहीं बनती हैं, क्वालिटी फिल्में नहीं बनती हैं, अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, तो आपको कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है if you do not go and watch Yes Papa. I just wanted to add one thing, जो आपने बोला कि प्रूफ करना, तो ये ट्रेलर में जो आपने डायलॉग सुना, just before that there are 2 lines जिसमें वो ये बोलती है कि जो कुछ भी निशान या कुछ भी ऐसा जो बॉडी पे आप देखना चाह रहे हैं और आप सबूत पेश करने की बात कर रहे हैं, वो तो 72 घंटों तक नहीं ठहर पाता, आप तो इतने साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो एक बच्चे से जो उस ट्रॉमा के साथ गुजरा है, जवानी में अगर पूछा जाएगा, तो वो सिर्फ अपने सोल को बेयर करके दिखाने के अलावा, और क्योंकि वो रीलिव कर रहा है वो ट्रॉमा, उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है।
बट इन कोर्ट्स एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू सबूत. तो एक कुछ बीच का बैलेंस कुछ एक चाहिए जहां पर इस पर्टिकुलर चीज को टैकल किया जाए. आई डोंट नो व्हाट बट वी हैव टू क्रैक दैट जो ताकि uh, ये यहाँ तक आके जो लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं. बहुत बड़ी बात होती है एक लीगल बैटल में कि वो जज के सामने खड़े होके अपना अपने अपने बारे में ये दोबारा बोल पा रहे हैं. और उसमें भी अगर उनको ये बोला जाता है कि पेश करो दिखाओ कैसे क्या, तो वो वही टूट जाएगा और वो दूसरे बैटल के लिए कभी रेडी नहीं होगा. क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी एक स्ट्रगल है कि इसको सामने लाया जाए. So given the span and complexity of this issue, we do not even touch this in a very sensitive manner. तो जैसे मैंने कहा कि बेसिक से शुरू करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो इसका तोड़ निकालना पड़ेगा कि आप इतने टाइम बाद सालों बाद किसी को ये नहीं पूछ सकते कि बताओ दिखाओ कि कैसे. तो वो उसके पास फिर अपने आंसुओं के और अपने स्ट्रगल को बताने के अलावा कुछ रह नहीं जाता. So if you're not trusting her or him, then he will lose it. I was asking you one question. हम जब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, we focus only entertainment on songs, on a jazzy music, पैपी सॉन्ग्स, या फिर हम मूवीज भी वही देखना पसंद करते हैं जिसमें काफी ही मसाला हो, काफी ही मार धाड़ हो. बट जब ऐसे टॉपिक पे कुछ आता है वो ज्यादा चल नहीं पाते सिनेमा घरों में. This topic gets always neglected by many audience also and by many big producers also. What do you want to say on this? This has to be taken by Ananth first. जब ऑडियंस को आपने डिसेंसिटाइज किया है, आपने सिर्फ मसाला मूवीज, आपने सिर्फ मार धाड़, आपने सिर्फ गाने, आपने सिर्फ एंटी ग्रेविटी के फिल्म्स दिखाए हैं आपके स्टंट्स में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अचानक बदल जाएंगे? इट्स लाइक सेइंग कि आपने आप अपने बच्चों को सिर्फ फास्ट फूड पे ग्रो ये किया है, यू मेक देम ग्रो अप ऑन फास्ट फूड, और अचानक कुछ सालों बाद आप कहते हैं कि नहीं आप सिर्फ नाचनी और ये हेल्थ फूड और ये सब खाएंगे. कैसे खाएंगे? उनको वक्त लगेगा, थोड़े थोड़े तरह को टेस्ट करके देखेंगे और फिर उनको अच्छा लगेगा. देन दे विल ड्रॉप द फॉर्मूला फूड एंड दे विल गो फॉर द हेल्थ फूड. तो जब तक हम अपने ऑडियंस को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, जब तक ऑडियंस में अवेयरनेस करेंगे, अभी जैसे आप कर रही हैं, आप योर प्लेटफॉर्म इज डूइंग a big service to this kind of cinema by bringing us in front of an audience and telling them कि देखिए इस तरह की फिल्में बन रही हैं, इस तरह की फिल्में देखनी चाहिए. तो this is a step by step very slow process और ये ज्यादातर इस दौर पे आया है क्योंकि जब 60s 70s में जब फिल्में बनती थी तो बहुत बहुत दिग्गज लोग थे जो फिल्में बनाते थे, जैसे विमल रॉय साहब, बासु भट्टाचार्य, मैं सिर्फ हिंदी फिल्मों के नाम ले रहा हूँ, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार साहब या बासु चैटर्जी, फिर मनी कौल साहब आए, कुमार शानी साहब आए, श्याम बेनेगल साहब आए, गोविंद निहलानी साहब आए. उन सब की फिल्में मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की फिल्मों के साथ साथ चलती थी क्योंकि एक डबल पैट्रनेज था. जो लोग इन ऐसे फिल्मों को भी सिल्वर जुबली तक ले जाते थे, हमारे पास ऑडियंसेस थी, लेकिन उस ऑडियंस को भी हमने ड्रग करके डिसेंसिटाइज कर दिया इस तरह के वाहियात फॉर्मूला को स्प्रेड करके. सो जब तक हम उन लोगों को रिकवर नहीं करने देंगे और उनको बार बार ये नहीं समझाएंगे कि देखिए ये भी एक एंटरटेनमेंट है. आप एंटरटेनमेंट क्या कैसे डिफाइन करेंगे? आप एंटरटेनमेंट को सिर्फ गाना, नाच गाना, कॉमेडी और एक्शन नहीं. आप इस फिल्म में बैठ के देखिए, 90 मिनट तक आप अपने सीट से हिल नहीं सकते. 90 मिनट तक वो ड्रामा इस तरह से एस्केलेट होता है. आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोटैगनिस्ट गोइंग थ्रू और उनकी जो जर्नी है. तो एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन जब तक हम बदलेंगे नहीं, हम कन्फाइन करके रखेंगे इन 4-5 चीजों में. Big producer need to take pictures like this and promote this kind of pictures. Producers have to be brave. Producers they need हिम्मत होनी चाहिए कि मैं अपना जो ये है certain amount of percentage of my funds, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेन स्ट्रीम फिल्म्स मत बनाइए, आप वो भी बनाइए, पैसे कमाइए, लेकिन वो जो प्रॉफिट आपको आता है 10% जो आप चैरिटी में दे देते हो हमेशा और बोस्ट करते हो कि मैंने ये चैरिटी किया है, वो चैरिटी किया है, 10% आप इस तरह की फिल्मों में डालिए. दैट विल बी द बिगेस्ट चैरिटी दैट all these funders and big corporate houses can do. So they should have the bloody guts to do this and support cinema
अब बार बार कहती हूँ इंडियन सिनेमा इज नोवेयर ऑन द वर्ल्ड सीन, ऑन द ग्लोबल सीन। कैसे होगा जब आप ही सपोर्ट नहीं करते हो, आप सिर्फ कंप्लेन करते हो, आप एक्शन नहीं लेते हो? Yes. गीतिका वाज सेइंग समथिंग। I was just saying that आजकल की generation और I'm not blaming any particular generation, इनके पहले के मतलब हमारे generation से भी पहले की भी generation अब तो hooked है on Yeah. 15 second 20 second reels पे, और Yeah. वो entertainment आपका concentration span इतना छोटे से भी छोटा से छोटा होता जा रहा है। तो आप what you're saying and what sir is saying is basically उस पूरी चीज को इरेडिकेट करके एक नया पूरा बबल क्रिएट करना, जो कि आई थिंक अभी भी अब तो और हम पीछे चले गए हैं। बीच Yeah. में अब पहले तो फिर भी थोड़ा एक स्कोप था वेयर यू कैन लाइक थोड़ा स्क्वीज करके किसी चीज को ऐसे एंटरटेनमेंट के पैकेज के बीच में आप डाल सकते थे, लाइक पीपल वर really fond of documentaries, people were really fond of theater and other like जो लॉन्ग फॉर्मेट एंटरटेनमेंट है उन पे अब तो बहुत मुश्किल से मुझे कोई मिलता है, of course barring my own industry जहाँ पे people are extremely fond of cinema, but बहुत मुश्किल से जो मिलता है कि वो they don't want to sit through such long preachy stuff, but forget documentaries and forget theater, ये टॉपिक पे भी आप बात करोगे तो उनको लगता है नो वी डोंट वांट टू वॉच समथिंग लाइक दिस, इट इज टू हेवी। तो हाँ, बिकॉज वो हेवी क्यों लग रहा है, बिकॉज वो अभी आप उनसे दो चार नहीं हुए हैं, अभी आपने अपना होराइजन अपना एक्सपोजर इतना नहीं बढ़ाया है कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन एंड वेयर आपके आसपास ही इट हैपेंस। So you don't, but the thing is people want अभी shut करना चाह रहे हैं, they just want to shut their eyes, shut their minds, shut their entire being कि मुझे जानना ही नहीं है, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट और फ्री का क्या लग रहा है आज की डेट में, कोई एक एंटरटेनमेंट किसी को ऑटो में बैठ के कहीं जा रहा है और उसका 10 मिनट 5 मिनट पूरा एंटरटेनमेंट में ही निकलता, करेक्ट? जो ड्राइवर के साथ गाड़ी ड्राइवर चला रहा है पीछे बैठ के भी वो अपना एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ वैल्यू करेगा इन सब चीजों की? बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट करनी चाहिए, और उसके लिए एफर्ट्स हम में से ही निकलेंगे। वो शुरुआत में सक्सेसफुल होंगे भी नहीं, उसको बहुत टाइम लगेगा, और हम एक तरीके से पहुंचे थे कहीं पर, लेकिन अब हम फिर से पीछे जा रहे हैं। कुछ टाइम से हम बहुत पीछे चले गए हैं और वापस एफर्ट्स लगेंगे उसको हमें वापस वहां तक पहुंचने के लिए, बट एफर्ट्स रुकने नहीं चाहिए। और हैं कुछ प्रोड्यूसर्स जो इस तरह की चीजों में बिलीव करते हैं, दे जस्ट कीप ऑन लाइक दे जस्ट वांट टू मेंटेन दैट, एंड लकीली सैफ उसमें से हैं, और लकीली हम उस टीम का हिस्सा बन पाए और अपनी आर्ट के जरिए ये सोशली रेलेवेंट टॉपिक पे हम कुछ कह पाए, बना पाए। Yes, yes. Lastly, I want to know from both of you, एनजीओ से भी काफी सपोर्ट्स मिल रहे हैं, काफी बड़े एक्टर्स ने भी अच्छे रिव्यूज दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे इतने सारे जो सपोर्ट्स मिल रहे हैं? जितना सपोर्ट मिले वो कम है, क्योंकि इस तरह की फिल्म के लिए हम कोई फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स नहीं ले सकते, वो बजट्स नहीं है इस फिल्म के लिए। और जब इम्पोर्टेंट लोग जैसे एनजीओज हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हैं, वुमेन कमीशंस हैं, जब ये लोग इस फिल्म के बारे में बात करेंगे तो ऑडियंस को भी पता लगेगा कि ये कुछ हवा में नहीं बात कर रहे हैं, कुछ सीरियस बात कर रहे हैं और इन लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। और हो सकता है इस फिल्म में कुछ ऐसा हो जो हमने शायद मिस किया है, हमें जाके इस फिल्म को देखना चाहिए। सो the more support we get, the better it is, and no support is too huge for this film. Yeah, yes, and it will allow us to contribute to meaningful conversations and raise awareness. So it's only like word of mouth is a big thing for us right now. Like we really want to catch as many eyeballs as we can. Yes, yes. Thank you so much for giving your precious time, and all the best for this movie. Thank you so much. जरूर जाके देखिएगा आप भी, आपका फीडबैक हमें। Bye bye. Thank you so much, and all the best. Appreciate it. Thank you. Bye bye. Bye.